So children, we are starting with this new topic. What is our system of elections? As you all know, electoral politics में a lot of discussions we have done on the importance of elections and importance of political system in India. ठीक है, importance of elections in our political system. हमारे यहाँ पे how it is working. This is very important. Last class that we have stopped, there we have seen this cartoon, one of the very funny ones. Got it? तो इससे हमको समझ में आया कि how the voters are powerful. We understood about the power of the voters. Okay, उल्टा लटका देते हैं, इतनी पावर है नेताओं को. The leaders who come and ask for votes, the voters who are there, when the time comes, then the voters say, हमारे लिए कुछ नहीं किया है, हम भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे. You have not given us anything properly or you have not served us properly. Thank you so much. अब हमको भी आपसे कोई मतलब नहीं है. Got it? तो ये चीज़ था. दूसरा, नेता जो प्रोमिस करते हैं, just see how they make the promises, and लोग खाली the people, they don't their promises, the leaders that have done, वो पूरे नहीं होते हैं. Those promises are not fulfilled. That is one of the important things. And too closer the reality that is there. आप अपने आसपास भी देख लेना, क्या इलेक्शंस के बाद सच में ऐसा होता है that the leaders they disappear. And yes children, that is a common feature. It happens, it does happen. Okay, so our elections, we are, you know it very well that India is democratic. How elections are happening, a very important thing. Our system of elections and how elections are happening in such a big country. India is not a small country, ना छोटा मोटा देश तो है नहीं. तो in such a big country, how well the elections are held and how well the elections are organized, that is what is mentioned here. Got it? So how elections are held in India, let's have a look. Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are there. You know it very well. Lok Sabha elections, that the elections that are held at the central level, and Vidhan Sabha elections that are held at the state level. सेंटर में सरकार अलग बनती है, स्टेट की सरकार अलग बनती है. Why this kind of a thing? This kind of a thing is practiced so that the people who are getting a chance at the center में लोगों ने अपना गवर्नमेंट बना लिया है. नाउ स्टेट में हो सकता है अदर पार्टीज आर पावरफुल, दूसरी पार्टीज को भी चांस मिलना चाहिए. तो दे डोंट नॉमिनेट देमसेल्व्स, बट देन दे डू कैरी ऑन देयर इलेक्शन प्रोसेस इन दिस मैनर. इसी तरह से हमारे इलेक्शन चलता है. नोबडी हैज डिसाइडेड इट, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय आवर ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन, बाय अकॉर्डिंग टू द terms and conditions mentioned in the constitution, by the most powerful organization, that is the election commission. Election commission holds the election and carries, just sees that election commission की responsibility है, they check it that the elections are held properly. Okay, सबसे पहले तो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट आई मीन बिकॉज आई वॉज डिस्कसिंग सो आई थॉट. इसके बाद क्या होता है, व्हेन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हरियाणा का वी हैव डिस्कस्ड, कांग्रेस वॉज रूलिंग, then the other party comes to power. When the other party comes to power, the previous party, it resigns. The election, it has to, what happens is elections are 5-year term ends. ठीक है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट खत्म हो गई, इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस के पहले एवरीथिंग इज डिसॉल्व्ड, सबका पावर जो है ना वो खत्म हो जाता है. ठीक है, एवरीबडी स्टैंड्स स्टिल, इट
comes dissolved and elections जो है हर जगह in all constituencies elections are held same time पे. Okay, either on the same day या फिर within few days, कुछ दिन के अंदर elections happen. Now these elections that happen after every 5 years in or at an interval of say 10 or 20 days, एक महीने के अंदर ये elections हो जाते हैं. Please understand, this is called as general election. Please remember the terminology. What is general election? Okay, election तो है, it is only for one constituency. In one constituency it is held to fill the vacancy. Maybe many times happens ना, you never know किसकी life के साथ क्या है. तो the vacancy is fulfilled by the death or resignation of a member. Some member is there has died और किसी ने resign कर दिया, तब बीच में elections होते हैं. Otherwise the elections are held after every 5 years only. 5 साल के tenure पे ही elections होते हैं. Now what happens? अगर बीच में इलेक्शन होते हैं, पहला तो हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द जनरल इलेक्शन. बट इफ एन इलेक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ अ कैंडिडेट और बिकॉज ऑफ सम crisis, then it is called as by election. What do we call it? We call it as by election. So in this chapter what we are doing is we will be talking about the complete procedure of general election. सारा कुछ पढ़ेंगे, कैसे होता है, who are the voters, who elect the how does the election commission decides the dates, and all these things are there. तो first thing that we need to understand, पहली चीज है, we need to understand about electoral constituencies. Okay, electoral constituencies are there, and in Haryana what happens, 90 MLAs were elected, and how did they do that? कैसे हुआ? Did every person in Haryana vote? क्या सबने 90 MLAs को वोट दिया है? अभी please understand this process that we are talking about, we will be discussing it in detail. Okay, like in our country what do we do? Representation is there. We elect the leaders, and these leaders, they go and sit in the parliament, and then they discuss about the problems of the common people. They try to solve the problems of the common people in a very different manner. So representation is there. Country is divided into different areas. Elections are held, and the country is divided into different areas. ठीक है, because we discussed in one of the online sessions also, we have discussed about how constituency is formed. What actually do you mean by a constituency? ठीक है, and how does this constituency work? ये हमने पढ़ा है, we have already known about it, we have been knowing about it. तो electoral constituency क्या होती है और इसको किस बेसिस पे बनाया जाता है, let us discuss about it. So the areas are called as electoral constituencies. Voters who are living in this area elect one representative. एक representative को वो elect करते हैं, and this representative then further goes and sits in the parliament or in the Vidhan Sabha. Lok Sabha elections that happen, ठीक है, on a very large scale, when the Lok Sabha elections happen, so the whole country is divided into 543 constituencies. Got it? 543 constituencies are there, and the elections कैसे हो रहा है? एक दो लोग तो वोट दे नहीं रहे हैं, एक दो सिटी में भी नहीं हो रहा है. In the whole country the elections are happening. तो how will the representatives be elected? The representatives elected from each constituency is called as an MP. MP, Member of Parliament. Previously also I have discussed who is the Member of Parliament from Varanasi. You know it very well, it is Narendra Modi. ठीक है, he was contesting election from Varanasi
and being looking at the people have given an overwhelming response. बहुत वोट्स मिले थे उनको. ओके. एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वन ऑफ द मेजर फीचर्स इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. एक आदमी का एक ही वोट काउंट होगा. नो, व्हाई आई एम सेइंग इट इज सम कंट्रीज, सपोज द महारानी इज वोटिंग, तो उनका वोट जो है दैट इज इक्वल टू 2, डबल. सारे लोगों का वोट एक काउंट होगा तो उनका वोट 2 नंबर मिलेंगे उस कैंडिडेट को जिसको महारानी ने वोट डाला है. ओके. आई वॉज जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल. बेटे मैं एग्जाम्पल साइट कर रही हूँ कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एवरी वोट विल हैव वन वैल्यू. बिकॉज इफ सेम पर्सन 2 वोट्स उनके नाम से अगर रजिस्टर है तो फिर प्रॉब्लम होगी हमारे यहाँ पे. अदर कंट्रीज इट इज़ हैपनिंग. तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में द फर्स्ट थिंग दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. सो व्हाट हैपन्स कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट रिक्वायर्स कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन आर लिविंग. आई मीन द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे मस्ट हैव इक्वल पॉपुलेशन. ऐसा नहीं हो कहीं पे बहुत ज़्यादा वोटर्स हों, कहीं बहुत कम हो. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द स्टेट्स दैट आर देयर, इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ elections that would be held in a particular constituency. एक दिन में 15 से 20 cities में वोटिंग होगी. That is the average thing. देखो ये भी होता है ना कि how to manage it. Management of all these work is a very Herculean task. बहुत बड़ा काम है. तो we need to understand कि constituency में each constituency will have roughly equal population living within it. In the same state is divided into specific number of assembly. हर एक स्टेट में how many assemblies are there, how many people would be voting, that is decided. अभी जैसे क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जहाँ स्टेट इलेक्शन होता है, the central election that happens, the person who is elected is called as MP, member of parliament. State में the same person is called as MLA, member of legislative assembly. Sorry. अभी क्या हो रहा है, so many constituencies are there and several assembly constituencies are there. Same principle is applied for panchayat and municipal elections. The way the state elections are held on the same manner, on the same grounds, municipal elections are also held, panchayat and municipal elections. Now what happens, every village or every town, पहले तो क्या होता है कि पंचायत इज देयर, उसके बाद इट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. टाउन, एवरी विलेज एंड टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. ईच वार्ड इलेक्ट्स 1 मेंबर. वार्ड होता है ना, मतलब कि 10 कॉलोनीज आर देयर इन दिस इन नदेसर. आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल. मान लो 10 कॉलोनी है, तो इस 10 कॉलोनी को एक वार्ड में चेंज किया जाएगा. आप जब वोट डालने जाओगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर वोटिंग फॉर विच पर्सन, बिकॉज द वोटिंग दैट इज देयर, द काउंटिंग दैट हैपन्स, उस वार्ड में जिसको मैक्सिमम वोट मिला है, ही वुड बी द पर्सन लुकिंग आफ्टर दैट वार्ड. ठीक है. And 1 member in the village or the urban local body is elected. Sometimes क्या होता है, the constituencies that have been divided, India तो सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश is the biggest one. Now what happens कि constituency that is there, these are counted as seats. कि 10 विलेज का एक वार्ड है, उस वार्ड में हु इज़ द विनर. नदेसर में कौन विन किया है, किसने विन किया, तो ही वुड बी द वार्ड, मतलब हेड ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे ही हैज़ वन द इलेक्शन. जैसे लोक दल,
अभी हरियाणा का हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ हरियाणा. हरियाणा में लोक दल हैज 160 सीट्स. गॉट इट? व्हेन लोक दल हैज 160 सीट्स इन हरियाणा. गॉट इट चिल्ड्रन? सो जैसा कि हम लोग बातें कर रहे हैं, यू ऑल नो इट वेरी वेल दैट वार्ड, the way we have the elections at the center, the same thing continues in the state also. Same thing nahi, the process is same in the state elections also. ठीक है, पूरे स्टेट को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, इसी तरह से पूरे स्टेट को, द होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. एंड व्हाट हैपेंस कि हर एक वार्ड में, एवरी वार्ड, वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी इज इलेक्टेड. ओके, अभी क्या होती है कि ये जो वार्ड में जो हम डिवाइड करते हैं पूरे स्टेट को और पूरे सिटी को, नाउ व्हाट हैपेंस कि दीज आर कॉल्ड एज, एक जगह पे एक आदमी जो जीता, दैट इज कॉल्ड एज द पार्टी हैज वन अ सीट. एक सीट मिल गई पार्टी को. जैसे हमने हरियाणा इलेक्शंस में भी डिस्कस्ड दैट हरियाणा इलेक्शंस हैड हैपेंड एंड इन हरियाणा इलेक्शंस द पार्टी, लोकल पार्टी, वो जो चौधरी देवीलाल ने जो जीती थी, 60 सीट्स दे हैव वन. दैट मीन्स देयर कैंडिडेट्स हैव वन इन 60 वार्ड्स. गॉट इट? तो यही चीज यहां पे है दैट द कैंडिडेट्स ऑफ लोक दल have 160 assembly constituencies, so that means कि लोक दल has got 60 MLAs in the state assembly. मतलब जब legislative assembly, where is the, got it children? So 60 assembly constituencies में अगर the लोक दल has one, that means it has one 60 seats. ठीक है, इट इज सेड कि सीट्स हैव बीन वन. तो किस हिसाब से सीट्स है, हाउ द वार्ड्स आर डिवाइडेड, दिस इज अ टास्क दैट इज बीइंग डन बाय द इलेक्शन कमीशन. गॉट इट? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये मैंने आपको इसलिए कहा बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैप प्रॉपरली. ओके, ये अभी ये देखो, प्लीज अंडरस्टैंड. पहले तो ये देखो कि ये गुलबर्ग कहाँ है. ठीक है, गुलबर्गा इज इन कर्नाटका. ओके, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कालाबुरागी. अभी वो साउथ में इसी तरह से नाम लिया जाता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कालाबुरागी. नाउ व्हाट हैपेंस इज चिल्ड्रन कि पहले तो आप ये देखो कि ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है. हाँ, गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी है. हाँ, इसमें देखो द होल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन डिवाइडेड पार्ट्स. गॉट इट? तो जब हम ये गुलबर्गा का, एक मिनट, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, हम जब ये गुलबर्गा का मैप देख रहे हैं, व्हेन वी आर सीइंग द मैप ऑफ गुलबर्गा, वी आर सीइंग दैट देयर आर, हम इसको नेम नंबर दे देते हैं, लेट्स गिव द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक छोटा सा है 8, यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एंड 9. तो आप ये देखो कि ऑल दिस इज कर्नाटका में, तो दैट्स व्हाई इट इज डिवाइड. गुलबर्गा रूरल है, गुलबर्गा उत्तर है, एंड देन अदर प्लेसेस आर ऑल्सो देयर. हमने क्या किया कि वी हैव टेकन दिस प्लेस एज गुलबर्गा. ये रहा यहाँ पे गुलबर्गा रूरल. वी हैव टेकन दिस प्लेस कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट. पहले तो गुलबर्गा इज देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें भी हमने देखा कि हाउ द सीट्स हैव बीन डिवाइडेड. ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट आर देयर, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाँ, अभी गुलबर्ग में
बाकी के स्टेट्स देखो आसपास नजर आ रहे हैं. आंध्र प्रदेश हियर, तेलंगाना हियर, तमिलनाडु हियर, एंड दिस इज द होल ऑफ गुलबर्गा. गुलबर्ग में द मेन सीट्स जो कि जिसका कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. गॉट इट. आप यहां पे देखो तब आपको समझ में आएगा. हियर इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट प्लेसेस जो कि आप भी अच्छे से जानते हो. विच प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट? यस चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग अबाउट माइसोर. ओके. इसके बाद आपने इस जगह का नाम भी सुना होगा, दैट इज टुमकुर. माइसोर तो डेफिनेटली सुना है. गॉट इट. नाउ व्हाट हैपेंस, the boundary of the Gulbarga Lok Sabha constituency is not like the Kalaburagi. तो अपने लोक सभा that is your उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश पे देखो how many constituencies are there in Gulbarga Lok Sabha constituency. Is it the same in your own Lok Sabha constituency? जिस तरह आपके यहाँ पे है, the kind of constituency that exists at your place, is it that is there in Gulbarga? Got it? तो ये जो है ये समझने वाली बात है. We need to understand this thing. Got it? तो अभी एक बारी फिर से इस मैप को देखो. गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज देयर, उत्तर इज देयर, गुलबर्ग दक्षिण इज देयर. हाँ, तो एक जगह 44 गुलबर्ग दक्षिण को लेके ये वहां के छोटी छोटी जगह को किस तरह से डिवाइड किया गया है, दैट इज व्हाट इज शोन हियर. ओके. एंड द डॉट्स में दैट आर देयर, ये देखो गुलबर्गा इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री विथ अदर स्टेट्स एज वेल. काफी सारे राज्यों के साथ गुलबर्ग का द शेयरिंग इज देयर. एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आर देयर. इन अंदर में जितना भी लाइंस है, ऑल दीज साइड जो हैं, दीज ऑल लाइंस इनसाइड आर द all the lines that are there, all lines are the state the district boundaries. So ये जितना भी डॉट में है, it is all the state boundary. So Gulbarga is one of the constituencies that is sharing its boundary with so many other states. Got it? तो ये आपको समझना है कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिवीजन किस तरह से हुआ. फर्स्ट थिंग इज दैट द फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. इलेक्शंस हम बात कर रहे हैं, इंडिया बीइंग सच अ बिग डेमोक्रेसी, सच अ बिग कंट्री, हाउ द वोटिंग इज हैपनिंग, किस तरह से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये समझना बहुत पहला फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज दैट कि पूरे स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है. व्हाई? क्योंकि इलेक्शंस एक साथ नहीं हो सकता है. किस दिन कहां पे इलेक्शंस होगा, दिस नीड्स टू बी डिसाइडेड, और यही चीज ये लोग डिसाइड करते हैं. गॉट इट? तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत ही क्लियरली यहां पे दिया हुआ है. आपको इस चीज से ये तो क्लियर हो जाएगा कि इन विच स्टेट व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज बीइंग फॉलोड. ओके. तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट हरियाणा. एक तो हमने हरियाणा के बारे में डिसाइड आई मीन वी कि हाउ 60 MLAs वेयर इलेक्टेड. इन द सेम वे कर्नाटका के गुलबर्ग के कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे डिवाइड किया गया है, दिस वी हैड डिस्कस्ड. यहां से व्हाट हैपेंस कि इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो जाता है. द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन स्टार्ट्स. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला तो हो गया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 543 ये हमने देखा. नेक्स्ट इज सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट आर देयर इन द कंट्री. हमारे देश में जितना भी ऑल द डिवीजन वर्क दैट इज बीइंग डन, जितना भी डिवाइड कर रहे हैं, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज
Seats are reserved. On what basis is the seat reserved? पहला तो सीट रिजर्व है, उसके बाद क्यों सीट रिजर्व है? क्योंकि it is our country and it is our constitution which has said, constitution has entitles every citizen, हर एक इंसान को वोट करने का राइट है. every citizen is getting the right to vote and to elect the representatives and to be elected as representatives इलेक्ट करना है, प्लस अगर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसी हिसाब से इलेक्ट किए जा सकते हैं. गॉट इट? तो द पीपल हु हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हु आर देयर, दे वर वरिड, काफ़ी उनको चिंता थी. किस चीज़ की? दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, व्हेन द कॉम्पिटिशन इज देयर, व्हेन ओपनली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, तो ऐसा होता है, might be that some weaker sections and the lower sections are not getting full chance. कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इट हैज टू बी इक्वालिटी. तो जो पावरफुल हैं, हाई कास्ट हैं, हाई क्लास हैं, सारी सुविधाएं पता चली उनको मिल गई. अभी लोअर कास्ट पीपल, लोअर क्लास पीपल, दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स. चाहते तो हैं, दे वांट benefits, but they are actually not getting it. When they are not getting it, तो फिर क्या होता है कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में ऐसा किया गया that some seats are reserved for the weaker section. हाँ, good. Why? क्यों? Because everybody should get a fair chance. In the Lok Sabha elections as well as in the स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हर जगह पे हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. हो सकता है उनके पास रिसोर्सेज नहीं हों, माइट बी एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग देम, कि जिस गांव में वो रहते हैं, और द ट्राइबल पीपल हु आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट एरियाज. ट्राइबल्स तो आपको पता है ना, जंगलों में रहते हैं. जिस तरह की फैसिलिटी उनको चाहिए, हो सकता है उस तरह की फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही हो. So when they are not getting that kind of a facility, तो education contacts to contest and win elections against others, तो the influential people are always getting chance, and the resourceful who are there, वो कहेंगे कि अरे ये तो ट्राइबल है, इसको क्यों इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, जाके जंगलों में रहे. Because there is a provision for अनुसूचित जाति and अनुसूचित जनजाति. समझो, you all better understand in Hindi. So when there is provision in for scheduled caste and scheduled tribe, हाँ, ये दो चीजों पे ज्यादा डिस्कशन होते हैं. More of the discussions happen on these two lines. So the people who doesn't belong to the scheduled caste or scheduled caste and tribal people are very less. काफी लेस तो नहीं कहूंगी, काफी है इंडिया में, लेकिन फेयर चांस नहीं मिलता है. The people who are in power, they ensure कि ये जो है ये पीछे, इनको आगे आने का चांस नहीं मिलना चाहिए. They don't deserve it. Do they really don't deserve it? क्या सच में उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? ओके, तो क्या होता है, that they may be prevented, that influential and the resourceful people, they do not allow these lower caste people to come and participate. Then what, our parliament and assemblies, जितना भी हमारा सिस्टम है, it would be deprived, मतलब लोग अलग रह जाएंगे. किस चीज से? इट वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन. काफ़ी हैं, एंड इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं. क्या इनको चांस नहीं मिलना चाहिए? शुड दे बी नॉट गिवन चांस टू कम फॉरवर्ड? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज देयर, दे शुड बी गिवन चांस
पार्लियामेंट सिग्निफिकेंट सेक्शन गांव, जो लोग गांव में रह रहे हैं या जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, they are also Indians only. So the kind of chance that the higher caste and higher society people are getting, the same kind of chance should be given to the lower caste and lower society. Okay, so special thought about special methods was thought about, जिसमें कि the provision of reserved constituencies was decided. Got it? तो ये reserved constituencies किस लाइंस पे होती है and how the seats are reserved, ये हम डिस्कस करेंगे in the next class. Okay children, thank you so much and all the best to you.